Good morning, friends. Welcome to my 44th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding matrices. I have told that matrices is the arrangement of numbers or symbols within two brackets, and this is known as matrices. Next, we have discussed different concept related to matrices. We have discussed four important concepts. First concept is known as transpose of a matrix. What is transpose of a matrix? Transpose of a matrix means converting the rows of a matrix into columns and columns of a matrix into rows. That is known as transpose of a matrix. Next, we have discussed another concept that is known as determinant of a matrix. Determinant of a matrix simply means a value associated with a square matrix, and the value is computed by diagonal expansion method. Next, third concept we have discussed, that is known as adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? Adjoint of a matrix is the transpose of the cofactor matrix. Next concept we have discussed, that is known as inverse of a matrix. The inverse of a matrix is simply computed with a formula that is known as adjoint A divided by determinant A. If we divide the adjoint value of a matrix with its determinant value, we will get that is known as inverse of a matrix. In today's class, we will focus our discussion how to solve linear equation with the help of matrices. मैट्रिसेस के हेल्प से कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे आज हम बात करेंगे। हम डिटरमिनेंट्स में देखे थे क्रैमर्स रूल अप्लाई करके लीनियर इक्वेशन को डिटरमिनेंट के हेल्प से सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम मैट्रिस अप्लाई करेंगे, मैट्रिसेस अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। वो कैसे किया जाता है आज के क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर डिस्कसिंग लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन विथ यू, देन वी विल डिस्कस मोर ऑन इट। वन सेकंड प्लीज। Okay friends, today we will discuss solution of linear equation with matrices. Very important. This is known as solution with the help of matrix, not with the help of determinant. It is not Cramer's rule. प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बहुत सारा लड़का क्या करता है, गलती कर लेता है। क्वेश्चन पूछता है सॉल्व द लिनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, वो क्रैमर्स रूल लगाता है, वो गलती कर रहा है। क्रैमर्स रूल अलग है, ये मैट्रिसेस में लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अलग है। समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज नॉट क्रैमर्स रूल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दिस इज नॉट क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल नहीं है, क्रैमर्स रूल अलग है। दिस इज नॉट क्रैमर्स रूल, ये क्रैमर्स रूल नहीं है। याद रखने के लिए इतना बड़ा क्रॉस लगाया हूं, ये क्रैमर्स रूल नहीं है, ये कुछ अलग चीज है। ये क्या अलग चीज है आज हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, बेटा लीनियर इक्वेशन क्या है? मैं बताया था लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसका अननोन वैल्यू का पावर मैक्सिमम 1 है। तो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन is an equation where the power of the unknown value is 1। unknown value का पावर कितना है? 1 है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल 5x plus 3y is equal to 15. Next 6x plus 4y is equal to 25. हमें क्लियर? तो ये दोनों एक लिनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर अननोन वैल्यू कौन सा है? अननोन वैल्यू सर x से y है। x का पावर कितना है? 1, y का पावर 1। सेकेंड केस में x का पावर 1, y का पावर 1। इसको बोलते हैं लिनियर इक्वेशन। सो लिनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहां पर अननोन वैल्यू का पावर मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। तो लिनियर इक्वेशन ओवर। एक बार लिनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया, पता चल गया, अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन विथ मैट्रिसेस। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 लिखो, linear equation can be solved. Linear equation having 3 unknown variable. What is 3 unknown variable? X, Y, Z, or 2 unknown variable. 2 unknown variable क्या है? X, Y can be solved by applying inverse of a matrix. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? बाय अप्लाइंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फर्स्ट, एंड दिस टेक्निक लिखेंगे, दिस टेक्निक was developed by British mathematician this technique was developed by British mathematician Professor Arthur A-R-E-H-U-S Arthur Kelly C-A-Y-L-E-Y Kelly. So this is also known as Kelly's model. ये क्रैमर्स मॉडल नहीं है, केलिस रूल, C-A-Y-L-E-S-L-E-Y केलिस रूल. ये क्रैमर्स रूल नहीं है. केलिस रूल अप्लाई करके क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स का ये लीनियर इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे. सो दिस इज गिवन बाय प्रोफेसर केली इन 1857. बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ मैट्रिसेस इज गिवन बाय केली, C-A-Y-L-E-Y केलीस रूल. ये क्रैमर्स रूल नहीं है. समझ में आ गया? क्वेश्चन में देखना ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल से पूछ रहा है या केलिस रूल से पूछ रहा है या डिटर्मिनेंट से पूछ रहा है. दिस इज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड दिस इज ऑफ मैट्रिसेस. आपको देखना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन पूछता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, कौन सा रूल लगेगा? क्रैमर्स रूल लगेगा. अगर क्वेश्चन पूछता है सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, कौन सा रूल लगेगा? केलिस रूल लगेगा. समझ में आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको क्वेश्चन में पहले देखना चाहिए कौन सा रूल लगेगा, क्रैमर्स रूल लगेगा या केलिस रूल लगेगा. बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी बात करेंगे हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अप्लाई केलिस रूल. समझ में आ रहा है क्या? केलिस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट स्टेप्स टू बी फॉलोड. स्टेप्स टू बी फॉलोड. कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? बेटा स्टेप 1, 5-6 स्टेप फॉलो करेंगे यहां पर. स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है प्रेजेंट द गिवन इक्वेशन, प्रेजेंट द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको प्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिसेस, इन फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिसेस. अगर इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है, कौन कौन सा 3 डिफरेंट मैट्रिसेस? एक है मैट्रिक्स ए, दैट इज मैट्रिक्स ए,
कोमा मैट्रिक्स एक्स एंड मैट्रिक्स बी। तो तीन मैट्रिक्सेस बनाना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको तीन मैट्रिक्सेस बनाना है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। सपोज एग्जाम्पल एक लेता हूं, ये समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा हूं, क्या करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज हमको इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू, सपोज दिया हुआ है 30, फिर लिया हुआ है 3x प्लस 4y प्लस 5z इजिकल टू दिया हुआ है 40, नेक्स्ट दिया हुआ है 5x प्लस 6y प्लस 7z इजिकल टू दिया हुआ है 50। क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू 30, 3x प्लस 4y प्लस 5z इजिकल टू 40, 5x प्लस 6y प्लस 7z इजिकल टू 50। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमको तीन चीज निकालना है। क्या क्या तीन चीज? पहले a निकालेंगे, फिर x निकालेंगे, फिर b निकालेंगे। पहले देखते हैं a क्या है। तो व्हाट इज a? व्हाट इज a? देखिए a इजिकल टू मैट्रिक्स ऑफ A is equal to matrix of coefficient of variables. एक इसका मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। बेटा वेरिएबल्स कौन सा है? एक्स वाई जेड। उसका कोएफिशिएंट कौन सा है? कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड केस में 3 है, थर्ड केस में 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो A इजिकल टू क्या होगा? A एक मैट्रिक्स होगा किसका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मतलब फर्स्ट में होगा 2, सेकंड में होगा 3, थर्ड में होगा 4। नेक्स्ट 3, 4 सिर्फ कोएफिशिएंट का 5, नेक्स्ट 5, 6, 7। ए समझ में आ गया। फर्स्ट मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो दिया हुआ है उसका कोएफिशिएंट। वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, उसके सामने जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पर एक्स के सामने 2 लिखा हुआ है तो 2 हो गया कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है क्या? मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। देन मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स एक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स एक्स? Matrix X is the matrix of, matrix X is the matrix of, ये मैट्रिक्स नहीं है, थोड़ा इसको चेंज करता हूं, कॉलम मैट्रिक्स। बेटा कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में अननोन वेरिएबल्स कौन सा है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल है, उसको कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम में रखना है, एक ही कॉलम में रखना है। तो एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया एक्स। तो लिखेंगे एक्स इजिकल टू ये है। सो एक्स इजिकल टू ये निकल गया। बेटा ए जो है ये ए कितना मैट्रिक्स है? 3 रो है, 3 कॉलम है, इससे 3/3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्स कितना आया? 3 रो है, 1 कॉलम है, 3/1 मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैक्स गया, अभी एक चीज बचा हुआ है, क्या है? बी। बी इजिकल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज का कॉलम मैट्रिक्स। बेटा देखेंगे यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम है। नोन वैल्यूज कौन सा है? नोन वैल्यूज ये है 30, 40, 50। तो 30, 40, 50। तो कितना रो है, कितना कॉलम है? 3 रो है, 1 कॉलम है। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे।
कौन कौन सा 3 मैट्रिक्स पहले समझाता हूं। पहला है ए, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या है? इट्स द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, जो जो एक्स वाई जेड के सामने लिखा हुआ है उसको हो गया कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स क्या है? इट्स द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल्स मतलब जिसको पता नहीं है, एक्स का वैल्यू पता नहीं, वाई का वैल्यू पता नहीं, जेड का वैल्यू पता नहीं, तो एक्स वाई जेड का एक कॉलम में रख देंगे, वो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बी क्या है? बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज का मैट्रिक्स को बोलते हैं बी। तो 3 चीज हम निकालेंगे, ए एक्स बी। ए एक्स बी निकाल दिए तो तीनों मैट्रिक्स हमको पता चल गया। मैट्रिक्स ए क्या है, मैट्रिक्स एक्स क्या है, मैट्रिक्स बी क्या है। तो बी का वैल्यू यहां पर पता चल गया। कहां पर बी का वैल्यू पता चला? ये केस में बी इज इक्वल टू दिस। तो बी इज इक्वल टू ये। बेटा तीनों मैट्रिक्स के बारे में पता चला, ए एक्स और बी। ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है, ये तीनों इंपॉर्टेंट केस है। ए एक्स बी पता चल गया। तो फर्स्ट स्टेप ओवर। स्टेप 1 बोलता है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, उसको 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए है कोएफिशिएंट का, मैट्रिक्स एक्स है अननोन वेरिएबल्स का, मैट्रिक्स बी है नोन वैल्यूज का। समझ में आ गया? तीनों मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप ए ओवर। नेक्स्ट स्टेप 2। तो लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2 लिखो, express the matrix in determinant form. Express the matrix A in determinant form. बेटा मैट्रिक्स ए जो निकाले थे उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा? दैट इज ए का डिटर्मिनेंट एंड फाइंड आउट इट्स वैल्यू। इसका वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? ए का वैल्यू निकालो। इफ ए वैल्यू is not equal to 0, then proceed towards other step. तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ए जो मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स निकाले थे, ए एक्स बी। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसका वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आगे बढ़ो, अगर 0 है वहीं पर रुक जाओ। समझ में आ गया? अगर 0 होगा इस डिटर्मिनेंट का, इस जो इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। अगर वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा? हम आगे जा सकते हैं। स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 जाएंगे। तो स्टेप 3, स्टेप 3 लिखो, फाइंड आउट adjoint value of A, matrix A. Find out adjoint value of matrix A. मैट्रिक्स ए का adjoint वैल्यू निकालो, दैट इज adjoint A। बेटा adjoint A कैसे निकलता है? adjoint A निकलता है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिए, आपको मिल जाएगा adjoint वैल्यू। स्टेप 3 गया। नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4, फाइंड आउट
इनवर्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, फाइंड आउट इनवर्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। बेटा इनवर्स को बोलते हैं ए टू द पावर -1। कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। इसका इनवर्स वैल्यू निकाल लो, इसका इनवर्स निकाल लो। स्टेप 4 ओवर। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 लिखिए, मल्टीप्लाई a to the power -1 that is inverse of a into, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए a to the power -1 into b। ये दोनों को इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए? b के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट b मतलब क्या है? हम 3 मैट्रिक्स निकाले थे। कौन कौन सा 3 मैट्रिक्स? एक है a, एक है x, एक है b। a क्या था? कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। x क्या था? अननोन वैल्यू का मैट्रिक्स। b क्या था? नोन वैल्यू का मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ द a को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? b के साथ। नेक्स्ट स्टेप 5, स्टेप 6 बहुत इंपॉर्टेंट, लिखेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 लिखिए। स्टेप 6 में अप्लाई दी केलिस रूल। व्हाट इज केलिस रूल? व्हाट इज केलिस रूल? केलिस रूल बोलता है a to the power -1 into b is equal to x। ये इंपॉर्टेंट है, ये केलिस रूल है, इसको अप्लाई कीजिए। a to the power -1 को किसमें मल्टीप्लाई कीजिए? b में। ये मल्टीप्लाई कर लिए हैं, दैट इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू व्हाट इज? डिटरमिनेंट वैल्यू मैट्रिसेस ऑफ दी व्हिच वैल्यूज? अननोन वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप 7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z etc. Find the values of x, y, z from step 6। स्टेप 6 से, that is which rule? केलिस रूल से हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्या क्या स्टेप है एक बार फिर समझा देता हूं। स्टेप 7 है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप जो क्वेश्चन दिया होगा उससे उसको क्या करना है? 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कौन कौन सा 3 मैट्रिक्स? एक है a, एक है x, एक है b। a क्या है? a है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। x क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। एंड b क्या है? मैट्रिक्स ऑफ नोन वेरिएबल्स। नोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल, नोन वैल्यूज। नोन वैल्यूज ये जो दिया हुआ है 30, 40, 50, ये समझ में आ रहा है क्या? तो 3 मैट्रिक्स निकाल दिए, a, x, b। सारा काम हम कौन से मैट्रिक्स में करेंगे? मैट्रिक्स a में। पहले a मैट्रिक्स का स्टेप 2 में उसका डिटर्मिनेंट निकालो। स्टेप 2 में क्या हो? a का डिटर्मिनेंट निकालो। अगर a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो क्या होगा? आगे मत बढ़ो, लिख लो दिस इक्वेशन शुड नॉट बी, कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अगर a का वैल्यू 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में जाओ। स्टेप 3 क्या बोलता है? आप क्या निकालो? एडजॉइंट निकालो। अच्छा, स्टेप 4 क्या बोलता है? आप क्या निकालो? आप इनवर्स निकालो। स्टेप 5 क्या बोलता है? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो b में। स्टेप 6 क्या बोलता है? केलिस रूल लगाओ। केलिस रूल क्या बोलता है? a to the power -1 into b is equal to x। दिस इज केलिस रूल, CAYLEY, केलिस रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को याद रखना पड़ेगा।
समझ में आ गया? क्या है? a टू द पावर -1 इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट क्या करो, ये जो स्टेप 6 से उससे एक्स वाई जेड का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, देखकर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। समझ में आ गया? सारा स्टेप्स याद रहेगा। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखिए एग्जाम्पल 1। लिखिए एग्जाम्पल 1, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई from the following equation using matrices। मैट्रिसेस यूज करके, मैट्रिसेस मतलब कौन सा रूल? केलिस रूल। समझ में आ गया? मैट्रिसेस यूज करके ये जो नीचे दिया गया है उससे क्या निकालो? एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। इक्वेशन लिखो। इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 26। बेटा ये दो फिगर दिया हुआ है, इसी का हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टेप वाइज जाएंगे। पहले क्या करेंगे? 3 मैट्रिक्स निकालेंगे। कौन कौन सा मैट्रिक्स? ए, एक्स और बी। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप 1, फर्स्ट मैट्रिक्स A is equal to matrix of coefficients that is equal to, किसका मैट्रिक्स होगा? कोएफिशिएंट। बेटा कोएफिशिएंट कौन सा है? जो नॉन वैल्यू है, एक्स वाई है, उसके आगे जो लिखा हुआ है वो, उसके आगे क्या है? 5 2 3 4। तो हो गया 5 2 3 4। इट्स ए व्हिच मैट्रिक्स? 2x2 मैट्रिक्स। हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स ए निकल गया। फिर हम निकालेंगे किसका? मैट्रिक्स एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ which values? unknown variables। ये कौन सा मैट्रिक्स है? मैं बताया था कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब कॉलम फॉर्म में लिखेंगे अननोन वेरिएबल्स को। अननोन वेरिएबल 2 है, एक है एक्स, एक है वाई। सो ये हो गया कितना? 2 इंटू 1 मैट्रिक्स, 2x1 मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट मैट्रिक्स बी। बी क्या है? बी इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ known values। known values। व्हाट इज नोन वैल्यूज? नोन वैल्यूज क्या है? नोन वैल्यूज यही है। क्या है? 20 और 26। तो आपका आ गया 20, आपका आ गया 26। 20 और 26 समझ में आ रहा है क्या? 20 और 26 आ गया आपका। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है तो 20 और 26 कितना? 2 इंटू 1। 2 रो एक। तो 3 मैट्रिक्स मेरा मिल गया। ए एक्स बी। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2। फाइंड the determinant value
ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, ए के सामने दो वर्टिकल लाइंस, तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो है उसको निकाल दो, लिख दो। मैट्रिक्स ए ये था 5 2 3 4, तो ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा 5 2 3 4। ये कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगेगा, 5 इंटू 4, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस क्या होगा 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2, 3 into 2, 5 into 4 20 minus 3 into 2 6, that is equal to 40। तो इसका वैल्यू कितना आया 40। तो लिखेंगे आज डिटर्मिनेंट ए is not equal to 0, then the solution lies to the linear equation। Which solution? यूनिक सॉल्यूशन। ये जो लिनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ पर जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आया है, ठीक है, नॉन जीरो है, अगर जीरो हो जाता तो यहाँ पर लिखते हैं आज डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो सॉल्यूशन to this linear equation। This linear equation cannot be solved with the help of what is matrices। So step 2 over। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो लिखेंगे स्टेप 3, फाइंड आउट एडजॉइंट ए। बेटा एडजॉइंट ए कैसा आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर माइनर से कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर से क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे माइनर, फर्स्ट माइनर होगा M11, माइनर 11, तो लिखेंगे M11। बेटा M11 किसका, ये 5 का। कैसे करेंगे, ये जो 5 है, देखो यहाँ पर 5 है, ये जो डिटर्मिनेंट 5 है उसका जो रो में है काटो, जो कॉलम में है काटो, क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसको लिखो, बच रहा है सर 4, तो M11 हो गया 4। नेक्स्ट M12, M12 क्या है, ये 2 है, तो ये 2 जिस रो में है काटो, 2 जिस कॉलम में है काटो, क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो हो गया उसका माइनर 3। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट वाला आएगा सर ये 3, तो 3 का क्या होगा M21, M21 कितना होगा, तो ये 3 जिस रो में है काटो, कॉलम में है काटो, जो बचता है 2 बचता है सर। तो नेक्स्ट M22, 22 का कितना होगा, ये 4 का, तो इसको काटो, जिसमें है काटो, 2 जिस रो में है कॉलम में है काटो, क्या बचता है सर 5 बचता है, हो गया। तो इसका माइनर निकल गया। अभी देखेंगे कोफैक्टर, व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर को बोलते हैं C11, C12, C21, C22। कोफैक्टर क्या है, माइनर के सामने प्रॉपर साइन लगा दो, तो कोफैक्टर पोजीशन साइन, पोजीशन साइन कैसे निकालते हैं, रो नंबर कॉलम नंबर मिलाएंगे, ऑड होगा तो माइनस होगा, इवन होगा तो प्लस होगा। तो पहले देखेंगे C11, C11 क्या है, 1 + 1 2, 2 है इवन, इवन मतलब प्लस, तो दैट इज प्लस M11। समझ में आ रहा है क्या, C11 इज इक्वल टू प्लस M11, दैट इज इक्वल टू प्लस M11 कितना है 4, दैट इज इक्वल टू 4, हो गया। C11 गया। नेक्स्ट C12, 1 + 2 कितना है, 1 + 2 3, 3 इज ए ऑड नंबर, तो माइनस M12, that is equal to माइनस M12 कितना है 3, -3। नेक्स्ट C21 निकालेंगे, व्हाट इज C21, C21 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 + 1, 2 + 1 3, 3 इज ए ऑड नंबर, तो माइनस M21, दैट इज इक्वल टू माइनस M21 कितना है 2। नेक्स्ट M22,
m22 क्या है, m22 2 + 2 4, 4 इज ये इवन नंबर, इवन नंबर तो प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस C22 इज इक्वल टू प्लस m22 दैट इज इक्वल टू प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अगर सारा को फैक्टर निकल गया, फिर हम निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, इसको देखो तो देखेंगे देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स को बोलते हैं COF, को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू COF। कैसे निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे C11 C12 नेक्स्ट C21 नेक्स्ट C22। C11 कितना है, C11 है सर 4, C12 कितना है, C12 है सर -3। अच्छा C21 कितना है सर, C21 है -2, C22 कितना है सर, C22 है 5। दिस इज को फैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन हमको चाहिए एडजॉइंट ए, तो लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज, सो दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स जो निकला है उसका रो को कॉलम करो या कॉलम को रो करो, रो को कॉलम, कॉलम को रो करो तो कितना बनता है। अच्छा ये जो 4 - 2 इस तरह से लिख दो, 4 -2 -3 5, दिस इज आवर एडजॉइंट ए। स्टेप 3 ओवर, हम एडजॉइंट ए निकाल दिए। फिर क्या स्टेप 4 करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 इज इक्वल टू हम इनवर्स ए निकालेंगे, तो लिखेंगे स्टेप 4 फाइंड आउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इनवर्स को बोलते हैं a⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम निकाले थे 14 पहले स्टेप 1 में, स्टेप 2 में निकाले थे, इनटू एडजॉइंट ए 1/14 इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कितना है, एडजॉइंट ए तो आ गया 4 -2 -3 5। इसका मतलब वैल्यू कितना आता है, वैल्यू आएगा, हर एक एलिमेंट को 4 में डिवाइड कर दो। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट होगा 4/14, सेकेंड एलिमेंट होगा -2/14, थर्ड एलिमेंट होगा -3/14, फोर्थ एलिमेंट होगा 5/14। दिस इज नोन एज कितना, कितना रो, 2 रो 2 कॉलम। इनवर्स, इनवर्स ए आ गया, हर एलिमेंट को कितने में डिवाइड कर दिया, 14 में डिवाइड कर दिया, इनवर्स ए आ गया। नेक्स्ट स्टेप 5, स्टेप 5 लिखेंगे, स्टेप 5 स्टेप 5 क्या बोलता है, मल्टीप्लाई a⁻⁻1 इंटू किसको, a⁻⁻1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, b के साथ, a⁻⁻1 इंटू b। तो लिखेंगे व्हाट इज a⁻⁻1 इंटू b, तो देखेंगे a⁻⁻1 इंटू b इज इक्वल टू
क्या होगा, a टू द पावर -1, a टू द पावर -1 मतलब इनवर्स, इनवर्स का वैल्यू कितना है अभी निकाले हैं 4/14, नेक्स्ट है -2/14, नेक्स्ट है -3/14, नेक्स्ट है 5/14 इनटू बी। बी क्या है, बी एक डिटर्मिनेंट है ऑफ नोन वैल्यूज, तो बी का वैल्यू कितना आता है, बी का वैल्यू आता है 20 और 26। ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं बेटा, इस हिसाब से करते हैं, इसका ये वाइज जाते हैं, इसका कॉलम वाइज जाते हैं, रो वाइज इसका, कॉलम वाइज इसका, मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू, पहले क्या होगा, फर्स्ट में इसका रो वाइज 4/14 इंटू 12, तो लिखेंगे 4/14 इंटू 4/14 इंटू कितना होगा इसका 20 प्लस -2/14 इंटू 26। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वाला कॉलम में। सेकेंड वाला कॉलम में कितना होगा, हाँ सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला कॉलम चला गया, सेकेंड वाला यहां से देखो -3/14 इंटू कितना 20 प्लस 5/14 इंटू 26। देखते हैं ये दोनों का वैल्यू कितना आता है हिसाब करके, तो दैट इज इक्वल टू, अच्छा बेटा देखो दैट इज इक्वल टू कितना, पहले हिसाब करो 4/14 इंटू 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 80/14। अच्छा ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये होता है 2 इंटू 26 52/14। नीचे में कितना -3 इंटू 20 -60/14 प्लस ये हो गया कितना, अच्छा 5 इंटू 26 इंटू 5 130/14। बेटा इसको सॉल्व करो, ऊपर में कितना आता है, ऊपर में आ जाएगा आपका 14 ले लो तो ये आ जाएगा 80 माइनस 52, नीचे में कितना आएगा, वही 14 ले लो तो आएगा -60 प्लस 130, दैट इज इक्वल टू, ऊपर वाला फिगर कितना आ जाएगा, ऊपर वाला फिगर आपका आ जाएगा 28/14, नीचे वाला फिगर कितना आ जाएगा 70/14। दैट इज इक्वल टू कितना आता है वैल्यू, वैल्यू आता है, लिख लो 28/14 2, 70/14 5 हो गया। नेक्स्ट तो 2 5 आया, ये कितना, 2 रो है 1 कॉलम है। नेक्स्ट स्टेप 6 के लिस्ट रूल अप्लाई करेंगे। स्टेप 6, स्टेप 6 लिखिए अप्लाई, स्टेप 6 लिखिए अप्लाई केलिस रूल। What is Kelly's rule?
पहले केलिस रूल को लिख लेते हैं, फिर अप्लाई करेंगे। केलिस रूल क्या बोलता है? केलिस रूल बोलता है a to the power -1 into b is equal to x. a to the power -1 into b is equal to x. अच्छा, a to the power -1 अभी हम निकाल दिए हैं। क्या है a to the power -1 इंटू बी? a to the power -1 इंटू बी अभी निकाल दिए हैं, वो हो गया 2 और 5, ये मैट्रिक्स 2 इंटू 1 मैट्रिक्स इज इक्वल टू x। x क्या है? x इज द मैट्रिक्स ऑफ अननोन वैल्यूज। अननोन वैल्यू कौन है? एक है छोटा x, एक है छोटा y, ये दोनों। So it's a 2 into 1 matrix. Now you can see and find out the value of x. बेटा x का वैल्यू कितना है? ये दोनों सेम है, तो x का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू कितना है? ये दोनों सेम है, तो y का वैल्यू आ गया 5। तो लिखेंगे स्टेप 7, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y। स्टेप 7 लिखिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y। स्टेप 7 है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x and y। तो लिखेंगे इन द अबव केस x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना आया 2, y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना आया 5। सो x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 5। दिस इज आवर आंसर। सो हम लोग बात किए कैसे केलिस रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का लीनियर इक्वेशंस का वैल्यू निकालेंगे। तो आज का क्लास का समरी करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। तो लिखेंगे समरी। तो आज के क्लास में क्या किए, समरी निकाले। समरी क्या है? समरी आज हम पढ़े हाउ टू अप्लाई केलिस रूल। केलिस रूल टू सॉल्व linear equation with matrices। केलिस रूल के बारे में पढ़े। केलिस रूल में कितना स्टेप है? 4-5 स्टेप है। तो क्या क्या स्टेप्स है, वो स्टेप्स को और एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेप 1 क्या करेंगे? एक्सप्रेस द क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेंगे इन 3 मैट्रिसेस। कौन कौन सा 3 मैट्रिक्स? एक है A, एक है X, एक है B। A is the matrix of what? A is the matrix of coefficient. X is the matrix of unknown values. B is the matrix of known values. समझ में आ गया? स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 क्या करेंगे? A का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। फाइंड आउट डिटर्मिनेंट A। तो इफ डिटर्मिनेंट A is not equal to 0, proceed to next step। नेक्स्ट स्टेप 2 गया। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 क्या किए? स्टेप 3 में फाइंड आउट एडजॉइंट A। नेक्स्ट स्टेप 4 क्या किए? फाइंड आउट इनवर्स A। बेटा एडजॉइंट A कैसे निकलेगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। इनवर्स A कैसे निकलेगा? इनवर्स A का फॉर्मूला है एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट A। नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 क्या किए? फाइंड आउट इनवर्स A इंटू B। नेक्स्ट स्टेप 6 क्या किए? अप्लाई केलिस रूल। केलिस रूल क्या बोलता है? केलिस रूल बोलता है A टू द इनवर्स A इंटू B इज इक्वल टू X।
इसको अप्लाई कीजिए, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, y, z, etc. Okay, so these are different steps to find out which value, unknown value of x, y, z, and to solve linear equation. Okay, with this we have to close our class today. ओके आज का क्लास को आज हम खत्म करते हैं, लेकिन बिफोर कंप्लीटिंग माय क्लास लेट मी फर्स्ट रिपीट यू, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, kindly subscribe to my channel. My channel is, my YouTube channel is Commerce Forum. Once you subscribe to this channel, once you subscribe to this channel, then kindly press the bell icon so that you can get my all latest videos as and when I upload it in YouTube. And please press the like button if you really like my classes. Next, if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Okay, with this we complete our discussion on matrices. Next class we will discuss a separate chapter. Thank you for watching my videos. Thank you all. Have a nice day. Thank you.